welcome to Indian Masterminds. My name is Bhakti Kothari and today I am here with a very special guest in our studio. Ms. Shatarupa Mishra is an Indian Revenue Service officer working with India's Income Tax Department in New Delhi. An alumnus and gold medalist in law from the prestigious Symbiosis Law School, Pune, Shatarupa has also completed her Masters in Law from Uppsala University, Sweden in Comparative and International Tax Law. She has handled many critical work assignments in her career till now, while carefully juggling motherhood and dancing, which she passionately pursues in spite of her hectic work schedule. Shatarupa has been dancing since the age of 4 years. She has participated in many state and national level dance programs. She started learning Odissi dance from Guru Shri Pitambar Biswal in the Guru Deva Prasad Das style from a tender age of 9 years and continues to learn and perform under his able guidance. Her deep love for Odissi dance has constantly motivated her to balance this passion alongside a demanding profession as a civil servant. Apart from dancing and reading fiction, Shatarupa also has a weakness for handloom saris and handicrafts from different regions. So welcome to our studio, ma'am. We are very happy to have you here. Thank you, Bhakti. Thank you so much. And ma'am, diving right into the question, of course, you are a trained classical dancer. Yeah. So have you learned dancing professionally or did it come to you, like, was it your, like, a childhood passion or something? Yeah, so initially it was my childhood passion. But I was very fortunate that my parents could understand that I was very much interested in dancing. So they helped me in inculcating this hobby and improving this hobby. So because I have always gone to dance classes and obviously, like you said, so I have learnt Odissi. And Odissi classes I started at a young age of around 9 years. Yeah. Okay. When I was a small kid. Yeah. And since then you've been dancing? Since then I've been dancing, yes. Okay. So, what does a typical day of dance practice or a typical day of practice look like in your life? So actually, as I'm also an Indian Revenue Service officer, so I really don't have the leisure of time or the, so time is of essence. Plus I have 2 babies. Yeah. So that is why, in a normal day, I get my daughter ready for school. And there is one particular time period of like 8, from morning 8 o'clock to 9 or 9:30. So that is the time that I have that I can devote to dancing. And otherwise on weekends, or if there is any event or any program coming up, so then I have to practice like for hours. And plus when my Guruji, he takes our classes online post-COVID, so he's located in Bhubaneswar. So when he takes our classes online, so that is like an hour twice a week. Okay. Yes. So ma'am, like, classical dance में बहुत सारे dances होते हैं, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया. Why Odissi? What attracted you towards Odissi? So initially, if I go back or delve deep into my childhood, I am from Odisha. I am an Odia. So, and in my family, everyone is either into, like as a hobby, either everyone is into some form of performing arts or fine arts. So either music or dance, everyone learns. My elder sister is trained in Odissi. My cousins are trained in Odissi. Wow. So yeah, so it's like जैसे घर से ही शुरुआत होती है और बोला जाता है कि आप encourage किया जाता है to have something, an extracurricular activity. So उड़ीसा में क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ till my standard 12th, so वहाँ पे ओडिसी के लिए obviously there was a lot of exposure to Odissi when back then in early 90s. And तो फिर तो इसीलिए ओडिसी पहले तो शुरुआत तो वैसे ही होती थी. फिर धीरे धीरे as you grow up and आप बड़े होते हो तो फिर you start understanding the theory behind the dance. You start appreciating the dance at a more deeper level, at a more जैसे soulful level जो बोलते हैं. तो फिर the passion has only continued and deepened with time and age. Right, of course.
सो जैसे कि आपने बताया कि 9 साल की उम्र से आप ओडिसी सीख रही थी, पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। आपकी पर्सनल ग्रोथ और इवॉल्वमेंट को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ओवर द इयर्स 9 साल की एज से लेकर अभी तक कितना आप अपने डांस के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व कर पाए हैं? Family is not involved in dancing per se, but they all appreciate art and in all its forms. So they are all like working professionals and in bureaucracy mostly. So personality, coming to your question, पर्सनालिटी तो मुझे लगता है कि आई एम अ मोर लाइक जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, आई थिंक डांस हुआ या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हुआ या कोई भी आर्ट हुआ, सो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द व्हाट डू यू कॉल द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, और द जो एक इमोशनल होता है। तो ये पर्सनालिटी को, इट्स नॉट लाइक कि कट 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 जैसे एक इंसान सोचता है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, इसका मैं ए कर रहा हूँ तो ए के बाद नेक्स्ट बी आता है। नो, it's a more nuanced approach to it gives a more nuanced approach to my personality. That is what I feel. और एक बात है कि जैसे हम उड़ीसा से हैं, और या जो भी कोई डांस क्लासिकल आप कुछ भी सीखो, किसी भी स्टेट का सीखो, तो देन ऐसे हो जाता है कि आप उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हो। सो वो मुझे लगता है कि हमेशा से, बिकॉज आई हैव दैट, एंड it's not okay, I'm trained in Odissi and I know about my states maybe slightly better. तो I also appreciate सामने वाला जो है, जो अगर वो दूसरा कोई कुछ सीख रहा है या कर रहा है, तो I can appreciate that better. वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे by Odissi and by grace of God वो है मुझे, वो एक an eye for detail और appreciation. That's amazing. होना चाहिए अपनी आर्ट फॉर्म के साथ साथ सामने वाले को अप्रिशिएट करना इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि हाँ नाच गाना है तो बस मतलब ठीक है ऐसे कर रहे, नहीं, मैं समझती हूँ कि कुछ सामने वाला कुछ भी करे, मुझे वो लगता है कि हाँ कितना मेहनत कर रहा है, अपने जॉब के अलावा या पढ़ाई के अलावा भी कोई कुछ कंटिन्यू कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो वो मुझे लगता है हाँ, मतलब मैं उन्हीं चीज़ों से अपना भी खुद का इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ। That's amazing, really beautiful. And of course, मैम, इतने सारे साल गुजर चुके हैं, आपने hundreds, lakhs, thousands of performances दी होंगी। कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको याद है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी मेमोरेबल रही हो, जिसने आपके दिमाग पे बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा हो, कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस सोचते हो तो उसमें भी टॉप टियर पे वो परफॉर्मेंस आती हो? हाँ, मतलब 2 परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूँगी। जो पहला वो तो हाल ही में 2019 में हुआ था। तो इट वाज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज माय हस्बैंड, ही इज़ अ ट्रेन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल vocalist. He's also an IRS officer. So he was singing and I was dancing on stage, and it was the home ground that is in Bhubaneswar. So it was the Ekamra Music and Dance Festival, and वहाँ पे तो वो मेरा सबसे मेमोरेबल था। इट वाज अ पीस ऑन जो पोएट हैं जयदेव, उनकी अष्टपदी होती है, तो उसमें इट वाज अ ओडिसी, प्योर ओडिसी पीस, और सो दैट वाज द मोस्ट, और उसके लिए काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था, बिकॉज वो हो जाता है एक कि आपको वो डांस सूट कर जाता है, और हस्बैंड वाज सिंगिंग, दो ही इज नॉट an Odissi vocalist, but he was given the opportunity to sing for me, and so that was, I think, the most memorable performance. बाकी अगर बहुत पुराने में जाऊं तो मेरे जो बचपन में जब मैं छोटी थी, तो we were in a small town in southern Odisha, और वहाँ पे गोपालपुर एक it's like a beach town बोल सकते हैं। तो वहाँ पे एक होता था बहुत बड़ा फेस्टिवल, गोपालपुर डांस फेस्टिवल, तो वो मैं गई थी एक बार मेरे ट्रूप के साथ डांस करने, तो वहाँ पे काफ़ी वो मेमोरेबल था, बिकॉज इट्स अ ह्यूज ओपन एयर क्राउड, एंड 500, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जैसे 2000-3000 लोग ऐसे इकट्ठे होके, तो वो बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था, मेमोरेबल था। सो मैम, एज अ क्लासिकल डांसर, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आपका बिगेस्ट रोल मॉडल या इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल डांस अभी तक कौन रहा है?
क्लासिकल डांस में तो अगर अगर डांस की क्लासिकल डांस की बात करूं तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंस तो मेरे गुरुजी ही हैं जी। गुरु श्री पीताम्बर बिश्वाल। तो सर मतलब सर सब ही इज़ अ वेरी नाइस, मतलब जो है ना, जो ब्यूटी उनके अंदर है वही उनके डांस में भी रिफ्लेक्ट करती है। वेरी सर बहुत मेहनत करते हैं, अपने स्टूडेंट्स पे भी बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर और हमेशा उनका पॉजिटिव रहता है, तो हमें बहुत डर लगता है बिकॉज हम रेगुलरली तो डांस फील्ड में है नहीं, वी आर नॉट अटैच्ड विद द डांस फील्ड। तो जॉब के साथ हम कर रहे हैं, बच्चे हो गए उनके साथ हम परफॉर्म करें, तो हमेशा डर लगता है। तो अभी भी वो बच्चों की तरह मैं पूछती हूँ कि सर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, एंड सर बोलेंगे हाँ होगा, ज़रूर होगा, क्यों नेगेटिव सोचना, ज़रूर ये होगा। तो क्लासिकल डांस में तो आई फील माई बिगेस्ट रोल मॉडल इज माई गुरुजी ओनली। एंड बाकी घर से बहुत इंस्पिरेशन है बिकॉज मेरी दीदी डांस करती है, मेरे मम्मी को डांस में बहुत शौक है। सो दैट इज़ वाई, तो वहाँ से इंस्पिरेशन, आई मीन एनी प्रोग्राम आई गो टू, इवन रिसेंटली आई परफॉर्म्ड इन जनवरी इन दिल्ली ओडिसी उत्सव। तो लकीली माय मदर वाज विथ मी, एंड उन्होंने वो जैसे इट वाज लाइक कि वो ऐसे ड्रेसअप में हेल्प कर रही है, सब कुछ ए टू जेड ठीक है कि नहीं वो देख रही हैं। तो शी हैज बीन लाइक दैट सिंस माय चाइल्डहुड। सो वेरी पर्टिकुलर कि नहीं सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बेटी का प्रोग्राम है तो। सो आई थिंक जैसे स्कूल में पेरेंट्स करते हैं ना एनुअल फंक्शन, हाँ, तो शी वाज देयर थ्रू आउट, एंड नाउ व्हेनेवर टाइम परमिट्स, सो आई टेल हर के यू आर माय लकी चार्म, तो तुम्हें रहना चाहिए सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। And obviously, ma'am, dance is a very, very powerful mode of expression, especially when it comes to emotion. So, क्या आपने कभी अपनी डांस में कुछ ऐसे elements डाले हैं या कुछ ऐसे impactful, what do you call it, impactful चीजें करी हैं जिससे आप अपने emotions को बाहर जनता के सामने express कर पाए हो through your dance? हाँ, मतलब बिकॉज क्लासिकल डांस में एक्चुअली मैं ज़्यादा आई एम नॉट अ वेरी I have not experimented that much, but I am trying to like build on my own choreographies, and because now that I am slightly more senior in the dance education part of it, so something is in the pipeline, so it is going to come up shortly. So अभी तक तो मतलब नहीं किया है। Okay, so are you also planning कि ओडिसी के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे different various classical dance forms, classical भी होते हैं, modern forms भी होते हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ प्लान करें कि ओडिसी के साथ साथ कुछ elements modern dance forms का या कुछ element classical dance forms का भी हम mixture करके, are you planning something like that? No, so when I perform Odissi, it's pure Odissi. I don't like, that is something I am not, लोग करते हैं but I am not very comfortable with that. I am a, मतलब जो से बोलते हैं purist in that sense. So I like pure choreographies. I go into the history, the culture of it, the in depth जो है उसमें क्या भाव हम express करना चाह रहे हैं. But yes, जैसे recently I performed a semi-classical piece. I also like all kinds of dancing, and अगर मेरे पास opportunity या time रहती है तो मैं सीखने का कोशिश करती हूँ. So recently एक informal office event के लिए, informal event के लिए तो I composed, I choreographed this हीरा मंडी का एक नया आया है सकलबन. So वो I try to interpret it with some taking some Odissi steps. So when I'm doing Odissi, it's pure dance, but मैं मेरी ओडिसी की जो लर्निंग है वो मैं दूसरे डांसेस में, when I'm not in the proper costume and the music is different, then I try to incorporate that. So वो आ ही जाता है, because आप एक ही टाइप का डांस जब पूरे अपने अब जैसे जहन में ही है मेरे, so I try to like incorporate elements from here, there. I like learning different kinds of dance. When I was training at NADT, so I learned a bit of Bihu also from my Assamese friends, and then वो perform किया. So वो तो करती रहती हूँ, मतलब whenever time permits. अब तो इतना नहीं करते because time is limited, but हाँ, I have done all that. So would you like to also show us some dancing in the studio? No. Okay, not an issue, not an issue. And of course,
व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, जब आप एक डांस परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हो, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है आपकी कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप, आपका हेयर, योर अपीयरेंस, राइट? उसमें आपका कॉस्ट्यूम, आपने क्या कपड़े पहने, किस तरीके के कपड़े पहने हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उसमें इम्पैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका पैशन फॉर जो डांस है, क्या इसने आपका अप्रिसिएशन फॉर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स उसको इन्फ्लुएंस किया है किसी तरीके से? हाँ, बहुत मतलब दो चीज़ें हैं इसमें। जब मैं परफॉर्म करती हूँ, कॉस्ट्यूम मतलब स्पेसिफिकली फॉर मी थोड़ा सा, मतलब पहले मैं कॉस्ट्यूम के बारे में नहीं सोचती हूँ, बिकॉज ओडिसी का तो एक ट्रेडिशनल जो गेटअप है, तो वो विद ज्वेलरी जो होती है, सिल्वर फिलिग्री ज्वेलरी एंड सो बट यस, एज अ ओडिसी डांसर आपका मेरा बहुत मतलब हैंडलूम के लिए अप्रिसिएशन भी उससे ही कहीं ना कहीं स्टेम करता है, बिकॉज यू आर, तो ओडिसी में वी वेयर जो ट्रेडिशनल साड़ीज हैं और उसी के कॉस्ट्यूम्स बनते हैं। पहले तो पूरा जो बहुत पहले जब व्हेन ओडिसी स्टार्टेड, तो उसमें तो हमारा प्लेन साड़ी को ही वैसे पहना जाता था इन द उसका। बट अभी तो इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब हैंडलूम के लिए भी अप्रिसिएशन आता है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर ओन स्टेट एंड दूसरे स्टेट्स का भी। Definitely, definitely. एंड दैट इज एक्चुअली माय सेकंड पैशन इन लाइफ। Oh wow, handlooms. Handlooms, Okay, yes, that's handlooms amazing. and textiles. That's amazing. So in fact, you're wearing such a beautiful sari today. Thank you. So I wanted to appreciate you on that also. Thank you, thank you. And then moving forward, let's talk about your personal life. Your husband, Mr. Abhishek, he's also an IRS officer. Yes. So could you give us a little insight on how did you guys meet? How did this love story start? Like from the academy, or like did you guys know each other from before? No, we did not know each other from before, but so we met in the academy. And then so love story started from the academy itself. And parents also sort of fixed our marriage, and like we also fell in love, so it so blame it on the academy. Blame it on the academy. Okay, okay. And आपकी शादी of course सबको पता है कि एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड पैशन का एक इवेंट था। ऑफ कोर्स यू बोथ आर, you're a dancer, he is a vocalist, आप लोग आर्ट्स में बहुत बिलीव करते हैं, योर लव फॉर टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम, जैसा कि अभी आपने हमें बताया, वो सब है। आपने अपनी शादी में टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम का अपना जो पैशन है, प्लस आपका खुद का जो पैशन है, इसका एक ब्लेंड, एक क्रिएटिव ब्लेंड डाला था। तो क्या आप हमें एक बार बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि एग्जैक्टली कैसे वो प्लान हुआ, क्या हुआ शादी में? So जब हमारी शादी तय हो गई, there were a few months to the wedding post our engagement. Now अब my family also and his family also, they are all very big handloom lovers and they all love handloom. But जो हमने feel किया या notice किया was that कि जब हमारा मतलब स्लोली वेडिंग्स इन स्पेशली, तो वेडिंग्स इन ओडिशा, तो वहाँ पे द फोकस हैज सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड टू नॉन हैंडलूम, या फिर जो एक सेट होता है कि ऐसे लहंगा होगा एंड वो मतलब, बट दैट इज नॉट जो ओडिशा में ट्रेडिशनली पहना जाता है। सो एक तो पार्ट वो था, ब्राइडल जो ट्रूसो बोल सकते हो, या ब्राइडल जो ड्रेस, वेडिंग साड़ी। तो एक तो वो था कि आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वो जो मतलब उड़ीसा के जो ट्रेडिशनल कलर्स हम लोग पहनते हैं तो शादी के वक्त, येलो में रेड बॉर्डर, सो आई हैड टू हैव अ हैंडलूम साड़ी ऑफ दैट। फिर दूसरा सेकंड पार्ट होता है कि जैसे वो भी हम देखें कि सब लोग मतलब जो रेगुलर साड़ियाँ हैं, जो दूसरे नॉन हैंडलूम साड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं। तो we thought कि why not make this an opportunity to, you know, for everyone to flaunt their best handlooms. So the idea was essentially my husband's, and he was like कि नहीं, हम जो हमारे guests हैं या family members हैं, we will ask them कि why not wear handlooms. So our wedding day was actually, because आप जो बाकी pre-wedding हो गया या post-wedding receptions हो गए, उसमें आप कुछ भी पहनो, but the main wedding day that should have like a lot of handloom. So the जो मतलब जो तो, और वैसे ही हमारी फैमिली में तो पहनते हैं ही लाइक जो पट्टो बोलते हैं, जो सिल्क साड़ीज होती हैं उड़ीसा की,
तो संबलपुर रीजन की, तो वो तो या फिर खंडवास होती हैं, तो बुमकाइज एंड खंडवास. सो इट वाज लाइक वेरी नाइस एंड एवरीवन अप्रिशिएट, एवरीवन गॉट ऑन बोर्ड. सो जो हैशटैग्स होती हैं वेडिंग की, वो उसमें वो हो गया hashtag our Odia wedding. So all the small rituals and everything was like the way traditionally it was. And my sari was a Paithani from Maharashtra. It was gifted to me by my UPSC mentor because he's like a brother to me. Okay. So then he gifted that sari, so that also blended in. So वो होते होते बहुत एक मतलब, and we didn't know that time कि उसको कि because this is something which is very natural कि पहले होता था, मतलब 20 साल या 15-20 साल पहले तो सब लोग ही हैंडलूम पहनते थे शादियों में. हाँ, वो ट्रेंड सडनली चेंज हो गया, वो चेंज हो गया. एंड वो हाँ, बॉलीवुड वेडिंग्स के बाद पेस्टल्स एंड हाँ, एंड दैट इज नॉट, मतलब हमें लगा कि मतलब I would not be or he would not be comfortable. So but you look beautiful. Thank you. I saw the pictures. You guys thank you. It was very simple and very simple, very sober, because अब नहीं देखने को मिलता वही पेस्टल लहंगास, हाँ, बहुत टिपिकल एक वेडिंग ड्रेस आ चुकी है मार्केट में जो सब पहन रहे हैं. एंड मतलब वो एटलीस्ट ओडिशा का थोड़ा डिफरेंट है कल्चर, तो वो तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता, एटलीस्ट हमारे लिए. तो बट अल्टीमेटली जो है ब्राइड इज द मेन पर्सन, तो व्हाटएवर शी लाइक्स वो होना ही चाहिए. राइट. एक और चीज थी, यू नो यू आर अ साड़ी कॉन्सियर, ठीक है, यू स्टिल वेयरिंग अ साड़ी. आपने उस टाइम पे भी साड़ी पहनी, आपने अपने सारे वेडिंग इवेंट्स में भी आई थिंक डिफरेंट हैंडलूम्स का साड़ी पहना हुआ था थोड़ा. सो कुछ उस टाइम का यू नो कुछ एक मेमोरेबल ऐसा कोई स्टोरी है बिहाइंड एनी पर्टिकुलर साड़ी? जैसे अभी आपने मुझे वेडिंग का तो बताया, अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो डज एनी पर्टिकुलर साड़ी ऑफ योर्स और कोई एक ऐसा आउटफिट आपकी लाइफ में, नॉट जस्ट शादी को, तो शादी को भी हटा दे, आपकी वार्डरोब में कुछ ऐसा आउटफिट है जो एक स्टोरी कहता है, जो आप जब उसको उठाते तो आपको पता होता है कि अच्छा ये इस टाइम पे ऐसा हुआ था. So any story that an outfit weaves? So I have this very simple white जो तांत की साड़ी होती है वेस्ट बंगाल की. Okay. तो उसमें वो जो साड़ी है वो मेरे नानी माँ की है. Okay. है ना. तो अब उनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट था, एंड इनफैक्ट ये मेरे इंस्टाग्राम पेज में मैंने दिया भी हुआ है. So that sari I got, and she was a married woman, and so but throughout her life she was wearing always white sarees. तो ये हमें बहुत बाद में पता चली कि what was the reason. तो she was like the बड़ी बहू उनके घर की, एंड मैनी तब के मतलब बहुत पुराना अगर हम देखें तो फिर उसमें अर्ली मतलब जब 1940s या 30s की बात करें तो तब उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, सब लोग आके रहते थे. तो उनकी जो भी शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ साड़ीज, तो लव फॉर साड़ीज आई थिंक वो जेनेटिक ही है. तो उनके पास जो भी थोड़ा बहुत नया उन्होंने था तो वो कोई ना कोई आके ले जाता था, एंड शी कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज शी वाज यू नो बड़ी बहू. एंड वो तो फिर उन्होंने सोचा, पहले तो वो दे देती थी और फिर उनको लगा कि मेरे तो साड़ियाँ ऐसे ही जा रही हैं. तो what she did was very progressive, I feel. What she started wearing only white sarees with border, and she maintained them very well. तो वो एक था कि मतलब तो सारी उनकी फिर वो मतलब दो she was married, and you know married में white थोड़ा सा inauspicious उस जमाने में मानते थे. तो फिर and till her death she was wearing like plain either silk हो या cotton हो, only white handloom sarees, and maintained them very well. फिर अब जब white साड़ी पहनने लगी तो फिर कोई मांग नहीं रहा था. So that was very I think progressive, because एक तो वो एक fashion, it was a powerful statement कि being a married woman she could wear white, and she wore white all throughout her life with a lot of pride. मतलब when I was kid even मुझे भी लगता था यार मेरी ही नानी है जो सफेद पहन रही है, क्यों पहन रही है. But yeah, that was so, and that sari I have with me. I have preserved that, so it's very special to me actually. That's lovely. And जैसे आपकी शादी sort of viral गई थी आपके उस टाइम पे क्योंकि हैंडलूम्स वगैरह कुछ था. तो आपको क्या लगता है कि आपके इस स्टेप से जो आपने ये स्टेप लिया था, जो वीवर कम्युनिटी है ओडिशा, उसको कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, कुछ टैंजिबल मतलब कुछ टैंजिबल यू नो रिजल्ट दिखे थे आपको उस टाइम पे?
कि कहीं ना कहीं मे बी क्योंकि दो इतने बड़े IRS ऑफिसर्स थे गेटिंग मैरिड, हैंडलूम को इतना प्रमोट कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो मे बी उसका कोई इफेक्ट उन पे भी आया हुआ हो, उनकी ही बढ़ोतरी के लिए। तो क्या आपको ऐसा कुछ याद है कि हुआ उस टाइम पे? हाँ, मतलब तब तो जैसे हम लोग एक्चुअली सोर्स किए थे हर जगह से साड़ियाँ सोर्स किए थे, सो देयर आर पर्टिकुलर जो वीविंग क्लस्टर्स होते हैं उड़ीसा में, और वी हैड जो हमारे खानदानी जो साड़ी लेके आते हैं, दीज डेज यू डोंट सी दैट इधर, दीज डेज इंस्टाग्राम सेलर्स या फिर दोज एम्पोरियम्स। सो तब हम लोग गए थे और बहुत सारे जो वीविंग क्लस्टर्स से जाके सोर्स किया था, मॉम ने भी किया था, मेरी मदर इन लॉ ने भी किया था। तो वहां से दो डायरेक्ट इम्पैक्ट, अब आप उस दिन तो सब लोगों ने पहने थे एंड फिर दे ऑल फ्लॉन्टेड देयर बेस्ट हैंडलूम्स, बट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल एंड द कवरेज दैट आर वेडिंग गॉट, आई थिंक इट स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन like weddings could also be different and they could also incorporate handloom elements into it. And uske baad se also I make it a point because I'm very grateful to God कि I'm in a profession जहाँ पे साड़ियाँ मैं पहन रही हूँ and मतलब you know regular पहनती हूँ। तो फिर उसको लेके बहुत लोग जैसे पूछते हैं कि फ्रेंड्स हो गए कि अरे ये तो साड़ी अच्छी लग रही है, तो ये तुमने कहाँ से ली? देन आई एम वेरी ओपन विथ माय इंफॉर्मेशन कि हाँ ये ऐसे ली, ये ऐसे हैंडलूम है, और इसका पावरलूम वर्जन तो आप कैसे यू नो पिक आउट, क्योंकि हैंडलूम्स पहनते पहनते आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा पावरलूम है, कौन सा हैंडलूम है। तो वो भी मतलब वो जो ट्रिक्स होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगता है कि हाँ, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी की भी इशू रहती है, बट ऐसा नहीं है कि सारे हैंडलूम्स एक्सपेंसिव हैं। तो स्पेशली जो अपने मॉम्स के होते हैं वो साड़ियाँ तो आप मतलब आराम से पहन सकते हो, बिकॉज वो तो आजकल में भी एक्सपेंसिव है, बट उस टाइम पे तो दे वर they're evergreen sarees. They're evergreen sarees, and I always feel that every saree has a story. So because of this saree, me wearing sarees, I have made so many friends. People know me now not just as an IRS officer, but as an IRS officer who wears handlooms. So that always becomes like a talking point, and you know there are saree groups, and I don't get time that much to interact, but हाँ, बहुत दोस्त तो ऐसे ही बन जाते हैं because of sarees. The fact that it's kind of getting to become your identity. हाँ, yes, so yes, yes. All the more shows your love for sarees, yes, and your yes. passion for sarees. Yes. And अभी आपने एक चीज mention करी कि you know tips and tricks to differentiate between a handloom and a power loom. So आप please हमें भी बताइए please. नहीं, एक तो वीविंग का तो पता चल ही जाता है, एंड मतलब अभी तक आई एम स्टिल लर्निंग। तो ऐसा तो मतलब मैं पीछे के साइड देखती हूँ, फिर उसको मतलब लगा के देखती हूँ कि सिल्क जैसे जो रेगुलर सिल्क होता है उसकी शीन एक अलग टाइप की होती है, तो वो फील पता चलता है कि कौन सी पावर लूम है, कौन सा है। और जैसे कि जो ट्रेडिशनल डिजाइन्स होते हैं वो पता चल जाते हैं, बट हाउएवर आजकल भी पावरलूम वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाते हैं। तो मतलब वो सब तो अभी मैं सीख ही रही हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस। हाँ, मेनली तो हैंडलूम फील्स वेरी कंफर्टेबल, इट फील्स लाइक योर सेकेंड स्किन, तो वो तो पता चल ही जाता है कि रियल कौन सा है, फेक कौन सा है। एंड सो मैम, एज वी कंक्लूड आवर कॉन्वर्सेशन टुडे, could you please let us know how do you manage your work life as an IRS officer and your time for your passion, your classical dancing passion? So how do you manage this? Babies. And babies, of course. And babies. She's a mother of 2 kids. So babies, घर, passion for dancing, और आपका IRS ऑफिसर का प्रोफेशन, कैसे आप बैलेंस कर रहे हो? नहीं, बैलेंस तो मतलब एवरी डे इज अ स्ट्रगल, एंड आई थिंक देयर आर सम जो अप वाले डेज होते हैं, और जैसे थोड़ा सा लो भी जाता है बिकॉज डांसिंग टाइम से प्रैक्टिस इतना हो नहीं पाता, या क्लासेस ऑनलाइन जो मतलब मिस हो जाते हैं। तो बट द प्रायोरिटी ऑब्वियसली बिकॉज माई किड्स आर वेरी यंग, तो प्रायोरिटी आर दे, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट, एंड ऑफ कोर्स ऑफिस इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो उसके साथ तो नहीं। तो जनरली लाइक पर ये मैंने अभी नोटिस किया, पहले आई वाज आल्सो वेरी वरिड व्हेन आई वाज इन माय मैटरनिटी लीव, एंड आई वाज थिंकिंग कि डांस तो अभी स्पेशली आफ्टर द सेकंड चाइल्ड के हो ही नहीं पाएगा। बट देन जब मैं व्हेन आई वाज
not on stage, or I did not perform on stage, and वो immediate months postpartum थे, तो I realized कि how much I will miss it अगर ये मेरे मतलब मुझसे छूट गया. एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इज लाइक आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कर सकते हो, वरना वो नहीं हो पाएगा. फॉर दैट मैटर एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. सो मतलब हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है. कुछ चीज़ें जैसे मतलब छूट जाती है, जैसे थोड़ा सोशलाइजिंग पे कट डाउन कर लिया या कुछ ऐसे कर लिया. एंड घर पे बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, बिकॉज माय हस्बैंड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दी आर्ट. सो ही इज ऑलवेज लाइक नहीं नहीं तुम करो, तुम जाओ, तुम परफॉर्म करो, यू डोंट वरी अबाउट द बैक एंड, घर का क्या हो रहा है एंड ऑल दैट. सो वैसे फैमिली की सपोर्ट अभी हाल ही में जब परफॉर्म किया तो माय पेरेंट्स वर देयर. So it's like a work in progress. And वही जैसे मतलब and the very good thing is that के like my elder daughter who's like 3 years and 8 months of age, so she is like she's starting to like dancing. So that is also one of the मतलब she likes dancing and she is like वो देखती है कि मम्मा ये डांस कर रही है, मम्मा ओडिसी कर रही है, तो फिर उसको भी वो इंटरेस्ट आता है, तो समहाउ जेल हो जाता है. तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए इट्स नॉट लाइक कि मैं रूम बंद करके सब मतलब करूंगी एंड उनको बिल्कुल. सो वो इधर उधर घूमते रहते हैं. वो थोड़ा इट्स नॉट एज क्या बोलते हैं, it's not like how as a very professional dancer would do, because but वो मतलब हो जाता है, because they are also trying to imitate me. Music पे वो लोग भी हिलने डुलने लगते हैं. तो I think वो मतलब मेरे लिए it is a easier हो जाता है. They make it easier because I feel like they are also showing, both my daughters they are showing कि नहीं डांस में ही इंटरेस्ट है. You like you said अभी थोड़ी देर पहले, it runs in the genetics. Yeah, I think it runs Love for sari and classical dance. Love for sari and classical dancing. And 2-3 ही hobbies है, books पढ़ना and classical dance and handlooms. So I think इतने चीज़ों के लिए तो हो ही जाता है, because I really like आपने सब घर में जैसे माहौल देखते हो ना, तो हाँ वो इम्बाइब होता है. हाँ, बिकॉज exactly. अब उनको पता है कि मम्मा ऑफिस जाएगी और मम्मा शाम को आके डांस क्लास करेगी, तो भले वो भी आके मतलब नाचते हैं, दे डू देयर ओन थिंग, बट फिर वो हो जाता है. इट्स नॉट लाइक कि नहीं आप ये स्टॉप करो. दे ऑल्सो लाइक डांसिंग. इनफैक्ट आजकल ऐसे हो रहा है कि शी इज नॉट अलाउिंग मी टू प्रैक्टिस. शी इज लाइक कि नहीं आप बैठो, मैं करती हूँ डांस, आप मुझे देखो. Thank you so much for joining us today, ma'am. It was indeed an enlightening conversation. Thank you so much. Thank you.